راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 69۔ آسمان پر اب بھی آتش بازی پورے زور سے ہو رہی تھی۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے، انیا کی آواز سے دونوں کی نگاہوں کا ساز ٹوٹا۔ مما! زرین نے نگاہیں ارمان سے ہٹائی پیچھے دیکھا جہاں انیا منال کی گود سے اتر کر بھاگتی ہوئی زرین کی جانب آ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچی تو زرین نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ وہ ستائش سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے ہاتھ واپس نیچے کر لیا کیونکہ زرین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد ہو چکا تھا۔ واؤ مما، آپ کتنی پریٹی لگ رہی ہیں۔ وہ زرین کے دونوں گالوں پر لب رکھتی چہکی تھی۔ زرین کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ میری بیٹی تو مجھ سے بھی زیادہ پریٹی لگ رہی ہے۔ زرین نے بھی اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ کھل کر مسکرائی۔ ارمان نے اپنے بازو کھولے، اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا تو وہ جھٹ سے ارمان کے بازو میں جا سمائی۔ ارمان نے دوسرے ہاتھ سے زرین کی کلائی پکڑ لی۔ وہ گارڈن میں سب مہمانوں کی طرف جا رہا تھا۔ سب کی نگاہیں بس ان تینوں پر ہی تھیں۔ منال مسکرا کر ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آئی، اب وہ سب سے مل رہی تھی۔ سب مہمانوں میں اس کا تعارف ہو رہا تھا جنہوں نے ابھی تک احمد شرازی کی بہو کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مریم سے کوئی بات کر رہی تھی۔ جب زرین کی نگاہ ایک منظر پر آ کر ٹھہر گئی، اس نے بے حد بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں سے فیصل بھائی، رباب بھابی اور احمد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ماریا بھی تھی۔ زرین کو جیسے اب بھی یقین نہ آیا کہ واقعی وہ یہاں آئے تھے۔ اس نے اسی خوشگوار حیرت سے ارمان کو دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا۔ زرین کی آنکھوں میں سوال تھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ کیا واقعی آپ نے انہیں انوائٹ کیا؟ بالآخر اس نے اپنا سوال لبوں تک لا ہی لیا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہارے چہرے پر یہ خوشی دیکھنے کے لیے میں نے انہیں بلایا تھا۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پرانی باتیں بھول گیا ہوں۔ زرین نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو جیسے اس کا دل سکون میں آ گیا۔ اسی لمحے اسے ٹوٹ کر ارمان پر پیار آیا تھا جو اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ خوش دلی سے فیصل بھائی اور بھابھی سے ملی۔ ماریا بھی انیا سے مل کر کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ارمان نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا۔ ملازمہ اس کا اشارہ سمجھ کر اندر گئی اور اگلے چند ہی منٹوں میں وہ کیک ٹرالی میں رکھے گارڈن میں لے آئی۔ کیک دیکھ کر انیا کی آنکھیں چمکی۔ ارمان نے اس کی پسند کے حساب سے بڑا کیک منگوایا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کو بڑا کیک کاٹنا تھا۔ پھر کچھ دیر میں وہ زرین کا ہاتھ پکڑے کیک کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کیک کٹ کرتے زرین نے ارمان کو روک دیا۔ ممی اور ڈیڈ کو بھی بلائیں۔ ارمان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اس نے زوبیہ بیگم اور احمد شرازی کو دیکھا۔ ممی، ڈیڈ، آپ بھی آ جائیں۔ اس کی آواز قدرے اونچی تھی جو سب نے سنی، مگر زوبیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم تینوں کاٹو، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ وہ چاہتی تھیں یہ لمحہ وہ تینوں مل کر سیلیبریٹ کریں۔ ارمان نے نائف انیا کے ہاتھ میں تھمائی جسے اس نے اٹھا رکھا تھا، پھر انیا کے ہاتھ کے اوپر اس نے زرین کا ہاتھ رکھا۔ زرین کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی مگر وہ مسکرائی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ کے اوپر ارمان نے اپنا ہاتھ رکھا اور اسی پل سب نے انیا کو برتھ ڈے وش کیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہر طرف سے یہ آواز کانوں میں گونجنے لگی اور یوں ارمان کے ہاتھ کا دباؤ دیتے کیک کاٹا گیا۔ ارمان نے کیک کا ٹکڑا اٹھا کر پہلے انیا کو کھلایا، پھر زرین کو، اور اسی وقت سارا گارڈن تالیوں سے گونج اٹھا۔ ستارہ ان کی تصویریں بنا رہی تھی۔ کلک کی آواز اور ایک دوسرے کو دیکھتے وہ دونوں۔ پھر ارمان نے انیا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اب سب انیا کو گفٹس دے رہے تھے۔ وہ اب کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ زرین نے اس سے دور جانے کی کوشش کی مگر ارمان کی پکڑ اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ وہ اس کے پاس کھڑی مسکرا کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ انیا اب شرازی صاحب اور زوبیہ بیگم کے پاس جا چکی تھی۔ سارے باتیں کرتے ادھر ادھر ہوئے۔ اب وہ دونوں اسی طرف اکیلے کھڑے رہ گئے۔ زرین اسے غصے سے گھور رہی تھی جو اسے اپنے قریب کھڑا اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ارمان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تمہیں اتنا حق نہیں تھا کہ اتنی پیاری لگو اور میرا دل بے قابو ہو جائے۔ محبت سے چور مخمور لہجے میں کہتے اس نے زرین کو بلش کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو بھی اتنا حق نہیں تھا کہ اتنے ہینڈسم لگیں اور یہاں آئی ہر دوسری لڑکی کی نظر آپ کا ایکس رے کرے۔ اس نے بھی جواب بھی وار کیا۔ ارمان بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ اس کی ہنسی کسی ساز کی طرح زرین کے کانوں میں گونجی۔ کیا کروں ہر دوسری لڑکی کی نظروں کا جب مجھے یہ لڑکی نہیں دیکھتی۔ زرین کی گال پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا، مجھے مجبور مت کریں عالم کہ میں آپ سے سیکھے سیلف ڈیفینس کو آپ کے خلاف استعمال کروں۔ میں چاہوں تو ابھی آپ کو یہی دھو سکتی ہوں مگر مہمانوں کا لحاظ کر رہی ہوں۔ آپ بھی ذرا مہمانوں کا لحاظ کریں اور زیادہ چپکے مت مجھ سے۔
وہ اب کچھ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ارمان ایک بار پھر ہنس پڑا۔ واہ میری بلی، مجھے ہی میاؤں؟ اور کتنی بار کہا ہے حق حلال کی بیوی ہو۔ یہ بندہ بشر چپکنے کا حق رکھتا ہے، اور مہمانوں سے مسئلہ ہے نا تمہیں؟ وہ اتنا کہتے اس کے کان کے پاس جھکا۔ تو ٹھیک ہے، آج رات تیار رہنا، تمہاری نیندیں اڑنے کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے میں نے۔ بیڈ روم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا تمہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے زرین کو سرتا پیر سرخ کر گیا۔ وہ اس سے اپنا آپ ایک جھٹکے سے چھڑواتی مینال کی طرف چلی گئی، مگر جانے سے پہلے اسے لقب سے نوازنا نہ بھولی۔ بدتمیز، بے شرم پولیس والے۔ ارمان اس کے لقب پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ وہ تھی تو اس کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹیں بکھری رہتی تھیں۔ وہ مینال کے پاس کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے ہماری زندگیوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تم خوش تو ہو؟ میں مطمئن ہوں۔ مینال مسکرا کر زرین کا گال تھپتھپا رہی تھی۔ زرین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے چھوڑیں، آپ یہ بتائیں، آپ ہارون بھائی کے ساتھ خوش ہیں نا؟ اسے آج تک یہ بات پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مینال کے چہرے پر اب ایک گہری اور حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں میں بہت خوش ہوں زرین، اس کے سامنے میں زیادہ ایڈمٹ نہیں کرتی، مگر وہ بہت اچھا شوہر ہے، جان وارتا ہے مجھ پر۔ اب بس میری ایک ہی حسرت ہے، اولاد۔ نہ جانے میں بھی کب ماں بنوں گی۔ بات کے آخر تک اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زرین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا کہ سانس آنا رک گئی۔ اسے تکلیف ہوئی، بے حد تکلیف۔ اس نے مینال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ بھی پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ آپ کو بھی جلد ہی اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اس رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ مینال نے نم آنکھوں سے پھیکی سی مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا، اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہارون کا دل جیسے کسی نے مسل کے رکھ دیا۔ وہ جو فون کال سننے وہاں کھڑا تھا، لاشعوری طور پر ان کی باتیں سن چکا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ اس کے وجود میں جیسے کسی نے تکلیف چھوڑ دی تھی۔ مینال کی آواز میں کتنی درد تھی وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے جبڑے تن گئے، آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے تھے، مگر وہ اپنی تکلیف اندر ہی اندر دبا گیا۔ وہ سب جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے، اچانک احمد شرازی کی آواز پر ان سب کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں یہاں موجود سب مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب آج یہاں اس دعوت میں آئے اور ہماری خوشیوں میں حصہ دار بنے۔ آج ہماری انیا کی سالگرہ ہے، اور انیا میرے لیے میری دوسری اولاد ہے۔ میری بہت خواہش تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو میں اس کا نام انیا رکھوں گا، مگر اللہ پاک ہمیں کبھی کبھی ہماری خواہشات سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ آج میں یہاں کھڑے سب لوگوں کے سامنے یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میری بہو میرے لیے میری پہلی بیٹی ہے۔ میرے بیٹے کی خوشیوں کی وجہ ہمارے گھر میں رونق اسی کے دم سے ہے، اور میں زرین کا شکر گزار ہوں مجھے اتنی عزت دینے کے لیے اور مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر سمجھنے کے لیے۔ اور انیا میرے لیے میری دوسری بیٹی ہے، میرے بیٹے کی بیٹی، میرے لیے میری تیسری اولاد ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ سو آج آپ سب یہاں موجود ہیں تو آپ سب کے سامنے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بیٹیاں اللہ پاک نصیب والوں کو دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کی سالگرہ کا تحفہ منگوایا ہے، تو پہلے انیا کا گفٹ لے آئیں۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو ان کے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ اب ارمان بھی ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس نے حیرت سے زرین کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ تمہارے لیے کیا گفٹ ہے؟ انیا کا تو سمجھ آتا ہے، مگر زرین نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں اب سامنے دیکھ رہے تھے جہاں انیا کا گفٹ آ چکا تھا۔ زرین کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ البتہ تحفہ دیکھ کر ارمان مسکرا دیا تھا۔ وہ انیا کے لیے گاڑی لائے تھے، کڈز الیکٹرک کار۔ 4 ٹائرز پر چلنے والی وہ گاڑی انہوں نے انیا کے لیے منگوائی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی تھی۔ جہاں سب کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی، وہیں انیا کے چہرے پر اتنا بڑا گفٹ دیکھ کر چمک آئی۔ وہ یاہو کرتی گاڑی کے قریب آئی۔ شرازی صاحب اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ واؤ ڈیڈ، یہ میرا گفٹ ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل، یہ میری شہزادی کا ہے۔ انہوں نے انیا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رباب بھابھی نے ایک نظر احمد کو دیکھا جو گاڑی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کل تک وہ جسے اپنے بیٹے کے معمولی سے کھلونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، آج وہ اس لڑکی کی قسمت دیکھ کر حیران تھی، یا شاید خدا کی یہی قدرت تھی۔ وہ لاڈ سے دادا کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو ڈیڈ، یہ بہت پیاری ہے۔ وہ خوش تھی، خوشی اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی۔ زرین نم مسکراتی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی بیٹی کا نصیب اتنا خوبصورت بنایا۔ پیسہ
खुशियों की वजह नहीं बनता, मगर पैसा इज्जत ज़रूर दिलवा देता है। वो बस ये तल्ख़ हकीकत सोच ही सकी। मैं ज़रीन को भी एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। शिराज़ी साहब की आवाज़ पर ज़रीन अपनी सोचों से बाहर निकली। वो हैरान थी। अरमान भी हैरानगी से बाप को देख रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं काफ़ी सालों से लंदन में था। वहाँ अपना बिज़नेस संभाल रहा था। एस एम्पायर, जो मैंने अपने बेटे के नाम पर बनाया था। ए मतलब अरमान, सबको ये लगता है, मगर एस का मतलब आज से होगा अनिया शिराज़ी। अरमान को बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था। इसे पुलिस में जाना था। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर मुझे अपने बिज़नेस की फ़िक्र रहती थी। मुझे किसी ने कहा था, अल्लाह पाक ने मेरे कारोबार के लिए बहुत बेहतर सोच रखा होगा। उन्होंने आखिरी बात हारून को देखकर कही तो हारून ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखते सर खम किया। ऐसा उसने ही कहा था। मैं आज आप सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं अहमद शिराज़ी, एस एम्पायर का, यानी अपने बिज़नेस का मालिक, पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता हूँ कि मैं आज से अपना सारा बिज़नेस ज़रीन के नाम करता हूँ। मेरी कंपनी की मालिक आज से मेरी बहू होगी। अब से वही मेरा बिज़नेस संभालेगी। मेरी वारिस मेरी बहू है। प्लीज़ वेलकम करें हमारी कंपनी की नई सीईओ का, मिसेस ज़रीन अरमान आलम का। और इन अल्फाज ने इस लड़की को साकित कर दिया। अल्फाज थे कि हैरानगी में छुपे साए ज़रीन का सारा वजूद सुन रह गया। उसे लगा वो हवा के एक सरसराते झोंके ने उसे साकित कर दिया। अल्फाज कानों में गड़बड़ हो रहे थे। वो बेहद हैरत और बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। सारे गार्डन में मेहमानों की तालियों ने ज़रीन को होश दिलवाई। उसने हैरत से चेहरा मोड़े अरमान को देखा, जिसके चेहरे पर एक गहरा सुकून और नरम मुस्कुराहट थी। क्या वह पहले से जानता था कि डेड पार्टी में ऐसा कोई ऐलान करने वाले हैं? वो अरमान को देखते कुछ दिन पीछे माजी में पहुंच गई। 4 दिन पहले, येनिया की सालगिरह से 4 दिन पहले असर का वक्त था। ज़रीन किचन से बाहर निकली तो उसके हाथ में चाय के कप थे। लाउंज के सोफे पर ही ज़ूबिया बेगम और शिराज़ी साहब बैठे किसी मौजू पर बात कर रहे थे। वो इनके पास आई, ट्रे टेबल पर रखी, एक कप ज़ूबिया बेगम की तरफ बढ़ाया। मम्मी, आपकी चाय? उन्होंने मुस्कुराकर कप थाम लिया। इसके बाद उसने दूसरा कप शिराज़ी साहब की तरफ बढ़ाया। और डैड, ये आपकी चाय। उन्होंने मुस्कुराकर ज़रीन के हाथ से कप पकड़ लिया। शुक्रिया बेटा। उनके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। इससे पहले वो वापस किचन में जाती शिराज़ी साहब की आवाज़ ने उसे रोक दिया। ज़रीन बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो काफ़ी संजीदा थे तो वो भी इनके पास सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अरमान कहाँ है? उन्होंने अरमान के बारे में पूछा, जो इस वक्त कहीं नज़र ना आया क्योंकि आज वो घर में ही था। वो अभी तो यहीं थे, शायद अनिया को लेकर बाहर निकले हैं। वो भी बात कर ही रही थी जब अरमान अनिया को उठाए लाउंज में दाखिल हुआ। अनिया के हाथ में चॉकलेट, चिप्स और केक के पैकेट थे। वो इसे लेकर बाहर गया था, शायद उससे आइसक्रीम खिलाने के लिए, और अब उसे इतना कुछ लेकर दे दिया। ज़रीन तो सर पकड़े बस अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती रह गई। वो काफ़ी दिनों से अरमान से कह रही थी कि इसे हर वक्त ऐसी चीज़ें ना ला कर दिया करे, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। बच्चों के साथ एक हद तक लाड प्यार अच्छा लगता है। वो नहीं चाहती थी कि अनिया बिगड़ जाए, ये ऐसी चीज़ें खाने से उसकी सेहत तबाह हो। मगर वो अरमान आलम था, उसकी सेहत का ख्याल ज़रीन से ज़्यादा रखता था। उसे पता था कि उसकी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत। वो इन मामलात में ज़रीन की कहाँ सुनता था। करनी उसने अपनी मर्ज़ी ही होती थी। इन सबको वहाँ बैठे देखकर वो भी ज़रीन के पास आकर सोफे पर बैठ गया। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मुझे तुम दोनों से ही बहुत ज़रूरी बात करनी है। शराजी साहब ने इस बार अरमान को मुखातिब किया। अरमान ने सवाली निगाहों से बाप को देखा। मैंने एक फ़ैसला किया है। मैं चाहता हूँ अब मैं सुकून से घर बैठूँ और मेरा बिज़नेस देखने वाला कोई हो। तुम्हें तो बिज़नेस में इंटरेस्ट है नहीं, तो मेरे ख्याल से मुझे अपना बिज़नेस संभालने के लिए जिस वारिस की ज़रूरत थी वो मुझे मिल गया है। वो दोनों हैरत से उन्हें देख रहे थे। अलबत्ता ज़ूबिया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद वो जानती थी कि शिराज़ी साहब क्या बात करने वाले हैं। वो जो उलझी हुई निगाहों से उन्हें देख रहे थे, उनकी अगली बात पर दोनों को साकित कर दिया। मैं चाहता हूँ ज़रीन अब मेरा बिज़नेस संभाले। मैं सब कुछ उसके हवाले करने के बाद पुरसुकून और मुतमईन हो जाऊँगा, क्योंकि पिछले 3 साल से जो काम उसने यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हमारी कंपनी के लिए किया है, वो सब देख और जानकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये सारा बिज़नेस बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उसकी ज़हानत हमारी कंपनी का बिज़नेस बहुत आगे लेकर जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे बाद ये मेरी कंपनी बहुत अच्छे से चला सकती है, क्योंकि ये इसी काबिल है। वो तो अभी तक हैरत से उन्हें देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? मैं कैसे इतना सब संभाल सकती हूँ, और इन सब पर मेरा हक नहीं है? ये सब कुछ तो आलम का है, वही आपके असल वारिस हैं। मैं कैसे? वो बेहद उलझी और बौखलाई हुई थी।
जबकि अरमान सारी बात तहम्मुल से सुनने के बाद मुस्कुरा दिया था, जैसे उसे अपने बाप का फैसला बहुत पसंद आया था। ज़रीन की बात पर तीनों की हंसी एक साथ उभरी तो इसने कुछ हैरत और खफगी से उन्हें देखा। अब इसमें हंसने वाली क्या बात थी? वह अरमान को घूर कर रह गई, जो काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रहा था। देखो बेटा, तुम्हारे शौहर ने तो मुझे बहुत मायूस किया है। इसे कितना समझाया कि अपना बिजनेस है वो संभाले, मगर नहीं, न जाने कौन सी तड़प थी उसे पुलिस में जाने की, या ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो अच्छा भला बिजनेस छोड़कर ऐसी नौकरी करने भाग गया। इनके लहजे में अरमान के लिए नाराज़गी नहीं, बस डांट थी। जरीन और अरमान की निगाहें टकराई। अरमान ने मुस्कुराहट दबाई, उसे आंखों ही आंखों से इशारा किया कि बताओ, क्यों गया था मैं पुलिस में? जरीन का चेहरा सुर्ख पड़ा, वो नज़रें झुका गई। अब उन्हें क्या बताती कि वो इसकी ख्वाहिश पूरी करने पुलिस में पहुंच गया था। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर वो खामोश रहा। और जहाँ तक रही बात वारिस की, तो तुम हमारे लिए हमारी बेटी हो। जो कुछ अरमान का होगा वो तुम्हारा भी तो होगा ना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बिज़नेस वो संभाले या तुम? होगा तो तुम दोनों का ही सब कुछ। इसने तो बाप को मायूस किया। अब देख लो, तुम भी उसके नक्शे कदम पर चलकर इनकार करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फिर यही होगा कि मेरे बाद बिज़नेस गैरों के हाथ में आ जाएगा। और यकीन करो, मेरी इतने सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई अगर मेरे बाद किसी गैर के हाथ में गई तो मरने के बाद भी मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सुरीन का दिल इनकी आखिरी बात पर जैसे तड़प सा गया। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। कैसी बातें कर रहे हैं? आपका साया हमेशा मेरे सरों पर सलामत रहे। अच्छा, मुझे कुछ टाइम दें इस बारे में सोचने का। उसकी आखिरी बात पर शिराजी साहब के लबों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून आ गया। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम सोचो अच्छे से, समझ लो, फिर कोई फ़ैसला करना। कोई जल्दी नहीं है। ज़रीन बस सर हिलाकर रह गई, मगर उसका दिमाग जैसे मफलूज हो गया था। इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगी वो? उसने कभी ये सोचा भी ना था। इस्लामाबाद शहर पर रात उतर चुकी थी। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो उसकी निगाह बेड तक गई। अनिया सो चुकी थी। पास ही ज़रीन ब्लैक नाइट ड्रेस में बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी गहरी सोचों का शिकार थी। अरमान उसके चेहरे से ही उसकी सोचों को पढ़ सकता था। वह गहरी सांस लेता उसके पास आया और फिर उसके सामने बेड पर बैठ गया। क्या सोच रही हो? ज़रीन का हाथ अपने हाथ में लेते नरमी से पूछा। ज़रीन ने चौंक कर उसे देखा। डैड ने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं आलम। मैं मायूस नहीं करना चाहती, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती, मगर मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल सकती हूँ? मैं औरत हूँ आलम, ये सब मेरे बस का नहीं है। और दुनिया क्या सोचेगी कि क्या शराजी ख़ानदान में मर्द ख़त्म हो गए हैं क्या, जो अब एक औरत बिजनेस संभाल रही है? वो शदीद डिस्टर्ब लग रही थी। अरमान को उसके मासूम चेहरे पर ढेरों प्यार आया। उसने ज़रीन को अपने करीब किया और अपने साथ लगाते उसके लिए हिसार बनाया। ज़रीन को जैसे ढेरों सुकून मिला। अरमान ने उसके माथे पर लब रखे, चंद पल ऐसे ही थोड़ी उसके सर पर टिकाई रखी। अब वो बोला तो लहजा बहुत धीमा और पुरसुकून था। दुनिया क्या सोचेगी ये दुनिया पर छोड़ दो, और दुनिया का काम ही ऐसी बातें बनाना है। लोगों को ये देखना चाहिए कि आज की औरत हर काम कर सकती है। तुमने जो प्रोजेक्ट्स एक आम एम्प्लॉय की हैसियत से बनाए, इनसे कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। वो मैंने खुद देखे हैं, और डैड ठीक कह रहे हैं, तुम बिज़नेस संभालने के लिए बेहतरीन इंतखाब हो। मैं तो खुद तुम्हें तरक्की की राहों पर गामज़न देखना चाहता हूँ। अपने हुनर से साबित कर दो कि औरतें सब कर सकती हैं। हम दोनों के दरमियान मेरा तुम्हारा कैसा, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम डैड को हाँ कर दो। ज़रीन ने हैरत से चेहरा उठाया से देखा। लेकिन मैं कैसे करूँगी आलम, मैं अब एक माँ हूँ। अनिया को टाइम देना मेरी पहली तरजीह है। वो अभी भी परेशान थी। अरमान के चेहरे पर हमेशा की तरह नरम सी मुस्कुराहट थी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम सब कर सकती हो। और अगर कभी कोई उलझन आए तो मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें सजेशंस दूँगा, तुम्हें आइडियाज़ आइडियाज़ दूँगा। इन पर काम तुम ही करोगी, क्योंकि शायद तुम भूल गई हो, मैंने भी बिज़नेस पर रखा है। और जहाँ तक रही बात अनिया की, तो इसके लिए हम दोनों हैं। इसे पूरा टाइम देंगे, सब मैनेज हो जाएगा। जब तुम ऑफिस में हुआ करोगी तो मम्मी होंगी ना उसके पास। और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, तो अब देख लो तुम अगर उसके बदले मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते बिजनेस संभाल सकती हो या नहीं। मैं जानता हूँ तुम सब कर सकती हो, मैं बस तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। बाकी तुम्हें जो अपने लिए बेहतर लगे वो करो, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूँगा, चाहे तुम्हारा जवाब ना ही क्यों ना हो। वो दोबारा उसका सिर अपनी ठोड़ी तले रखे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। ज़रीन खामोश ही रही थी, मगर उसका दिमाग अभी भी गहरी सोचों का शिकार था। लेकिन एक सोच थी जो हर सोच पर भारी थी।
ارمان نے اس کی خواہش اور خوشی کی خاطر پولیس جوائن کی، اپنے باپ کا بزنس ایسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تو لگژری لائف گزار سکتا تھا، مگر پولیس والا بننا کون سا آسان تھا۔ اس نے دن رات محنت کیے، اپنے وجود کو اس قابل بنایا۔ اگر وہ اس کی خاطر یہ سب کر سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بھی تو ارمان کو دل و جان سے بڑھ کر چاہتی تھی، اور اس کی وجہ سے ارمان نے بزنس چھوڑا تو اب اسے ہی اس بزنس کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ بزنس سنبھال لے گی کیونکہ وہ یہ کر سکتی تھی۔ بھلا ارمان عالم کی بیوی کے لیے بھی کچھ مشکل ہو سکتا تھا؟ ارمان اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اور وہ اپنی سوچوں میں الجھی اس کے سینے پر سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ جب ارمان کو محسوس ہوا کہ وہ سو گئی ہے تو اس نے زرین کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ اٹھا اور بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر اپنی جگہ سنبھالی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی زرین نے اپنا فیصلہ شیرازی صاحب کو سنا دیا تھا۔ میں بزنس جوائن کرنے کے لیے تیار ہوں ڈیڈ، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تینوں نے حیرت سے زرین کو دیکھا، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی شرط رکھے گی۔ کیسی شرط؟ احمد شیرازی نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ زرین کے چہرے پر آج ایک گہرا اطمینان تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں بزنس کی پیچیدگیاں ٹھیک سے نہ سمجھ لوں تب تک آپ کمپنی نہ چھوڑیں۔ آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے حوصلہ بھی ہوگا اور آسانی بھی رہے گی، اور میں کام آپ کے آفس سے نہیں کروں گی۔ وہ آپ کی جگہ ہے، میں اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہتی۔ آپ بے شک کسی دوسرے آفس کا بندوبست کروا دیں۔ زرین کی شرطوں نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اوکے، مجھے منظور ہے، وہ مان گئے تھے۔ زرین خوش تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس فیصلے کے بعد مطمئن ضرور ہو چکی تھی۔ حال زرین ابھی تک کسی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس امید نہیں تھی کہ ڈیڈ آج کی دعوت میں سب کے سامنے یہ اعلان کر دیں گے۔ سب مہمانوں کی نگاہیں زرین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ارمان نے دیکھا جب وہ اپنی جگہ سے ہی اسٹک کھڑی رہی تھی تو اس نے دھیرے سے زرین کا ہاتھ پکڑا۔ اس لمس سے زرین جیسے چونک کر ہوش میں آئی اور حیرانگی سے ارمان کو دیکھا جو اسے لے کر اب احمد شیرازی کی طرف جا رہا تھا۔ زرین نے لمحوں میں اپنی حیرت پر قابو پایا اور اب وہ کچھ ریلیکس ہو چکی تھی۔ وہ اب زوبیہ بیگم اور شیرازی صاحب کے پاس کھڑی تھی۔ سب مہمان تالیاں بجا کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ احمد شیرازی نے ایک فائل زرین کی طرف بڑھائی۔ یہ کمپنی کی پاور آف اٹارنی ہے، آج سے یہ سب تمہارا ہے۔ زرین کی آنکھیں نم تھیں، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ارمان نے اس کا ایک یک ٹھنڈا ہوتا ہاتھ اپنے نرم گرم ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس فائل کو تھام لیا۔ کاش آج اس کے ماں باپ بھی یہاں ہوتے تو دیکھتے اللہ نے اسے کتنی عزت دی تھی۔ ارمان اس کے ساتھ تھا، اس کا ایک سہارا تو یہاں تھا۔ کاش باقی سب بھی ہوتے۔ آج اسے اپنے شدت سے یاد آئے تھے، مگر افسوس وہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ کوئی نہیں، وہ آج نہیں تھے، جلدی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ گارڈن میں اچانک کچھ ہلچل ہوئی۔ شیرازی صاحب اب کسی کو اشارہ کر رہے تھے۔ دو وردی پہنے جوان پہلوان نما گارڈ گارڈن میں داخل ہوئے۔ دونوں نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا اور دونوں کے ہاتھوں میں بندوق تھی۔ زرین نے پلٹ کر انہیں دیکھا، سب کی نگاہ بھی ان تک گئی۔ یہ کمپنی کے سی ای او کے پرسنل گارڈز ہیں، 24 گھنٹے تمہاری حفاظت کے لیے ہر وقت تمہارے آس پاس ہی رہیں گے۔ تم کہیں بھی جاؤ گی یہ ساتھ ہوں گے۔ زرین نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر جھکا کر جیسے ان کی بات پر ہاں کی ہو۔ جلدی آپ سب کو کمپنی کی پارٹی میں بھی انوائٹ کیا جائے گا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سب آئیں گے۔ اور وہ دوبارہ مہمانوں سے مخاطب تھے۔ ایک دم سے جیسے برتھ ڈے پارٹی کا ماحول بدل گیا تھا۔ سب کی نظروں اور باتوں کا محور انیا سے زرین ہو چکی تھی۔ اس کی نگاہ اچانک ماریا تک گئی جو ایک کونے میں کچھ پریشان سی کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ زرین اس کی جانب بڑھی اور قریب پہنچی تو اندازہ ہوا وہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے کال کاٹ دی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے اور مسکرا کر زرین کو دیکھا۔ زرین باجی وہ کچھ کہنے والی تھی، مگر زرین کی آنکھوں کا تاثر دیکھ کر کسی نے اس کے لب سی دیے۔ نوکری نہیں مل رہی؟ زرین نے بس ہلکی سی آواز میں سوال پوچھا۔ ماریا کا سر جھک گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ زرین کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر واپس ان سب کی طرف بڑھی۔ اسٹیج کے پاس پہنچ کر اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر شیرازی صاحب پر ڈالی۔ ڈیڈ یہ ماریا ہے، میرے لیے بالکل چھوٹی بہنوں جیسی۔ یہ میرے ساتھ کمپنی میں ہوگی، میں اسے اپنی پی اے کی حیثیت سے ہائر کرتی ہوں۔ زرین کے الفاظ نے ماریا کا سانس روک دیا تھا۔ یہ شاید نئی زندگی دی تھی، وہ اندازہ نہ لگا سکی، مگر وہ بس حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ لمحوں بعد جیسے ہوش میں آئی اور اب حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے زرین باجی؟ وہ حیران تھی۔ کہاں وہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی غریب لڑکی اور کہاں
कंपनी की मालकिन। ज़रीन ने उसे आंखें दिखाते खामोश रहने का इशारा दिया। वो खामोश हो गई। शराजी साहब मुस्कुराए थे। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम जिसके साथ कंफर्टेबल हो इसी को हायर करो। वो मान गए थे। ज़रीन पुरसुकून हो गई। मारिया के चेहरे पर तशक्कुर के रंग थे, मगर जानती थी अगर उसने ज़रीन को शुक्रिया कहा तो डांट पड़ेगी, इसलिए खामोश हो गई। अरमान उसके पास खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में फ़ख्र था। ज़रीन के लिए बेहद चाहत थी। वो बज़ाहिर दुनिया से मुस्कुराकर कोई बात कर रहा था कि उसके कंधे पर सर रखे कुछ कह रही थी, मगर उसकी आंखें ज़रीन के वजूद पर ही जैसे टिकी हुई थीं। ज़रीन उसकी नज़रों से घबराकर रुख मोड़े अब मिनाल की बात सुनने लगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ ज़रीन। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी आजमाइशों के बाद ये इनाम दिया है। मिनाल की बात पर वो मुस्कुराई थी। अल्लाह सबको इनाम देता है मिनाल आपी, मगर मेरा इनाम कुछ और होगा। ये तो बस तोहफ़ा था, आपको भी अल्लाह इनाम ज़रूर देगा। वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी मिनाल समझ गई थी। इसके लबों ने बहुत धीरे से सरगोशी की। इंशाल्लाह। पार्टी ख़त्म होते 12 बज गए थे। मेहमान खाना खाने के बाद अब वापस जा रहे थे। ज़रीन को शायद शदीद नींद आ रही थी और अब वो बहुत थक चुकी थी, मगर शायद अरमान का भी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं था। वनिया को ऐसे ही उठाए मेहमानों को रुखसत कर रहा था। वह सर झटक कर अपने पाँव हील से आज़ाद किए मुलाजमा को बताए कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर आज कुछ ज़्यादा ही थकन थी। शायद वो आज हुए इस फैसले की वजह से थी। उसे अपने कंधों पर शदीद बोझ महसूस होने लगा। उसने सबके सामने तो हाँ कर दी थी, मगर वो कैसे करेगी ये सब? उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, या शायद नामुमकिन। उससे अब ये साड़ी भी थका रही थी। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल तक आई, सारी ज्वेलरी उतार कर वहाँ रखी, फिर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। अपना नाइट ड्रेस निकाला और चंद मिनट बाद वो ड्रेस चेंज किए धुले हुए मुंह के साथ वॉशरूम से बाहर निकली। एकदम से उसे ढेरों सुकून मिला। हल्का लिबास उसके कंधों के बोझ को भी हल्का कर चुका था। उसकी एक नज़र वॉल क्लॉक तक गई, जहाँ 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर अरमान और अनिया का कहीं कोई भी नामो निशान नहीं था। वो बेड तक आई और फिर अपनी जगह बैठ गई। कुछ देर उनके आने का इंतज़ार किया, मगर अब उसे नींद आने लगी थी। वो खुद ही आ जाएंगे, ये सोचते वो बेड पर लेटी और ब्लैंकेट सर तक ताने वो चंद ही मिनटों में नींद में उतर गई थी। अनिया के सारे गिफ्ट इस वक्त ज़ूबिया बेगम और शराजी साहब के कमरे में थे। अनिया की आंखों में कोई नींद नहीं थी, बस उसे जल्दी से गिफ्ट्स खोल कर देखने थे। वो भी खोलने के लिए बासित थी और अरमान कमरे में जाना चाहता था, इसलिए उसे यहीं छोड़ दिया। ज़ुबिया बेगम ने अरमान के चेहरे पर थकावट के तासुरात देखकर कह दिया कि वो इसे अपने पास ही सुला लेगी, मगर अरमान को कहाँ अपनी जान से अजीज़ बेटी के बिना नींद आनी थी। वो इसे लेकर जाना चाहता था, मगर अनिया ने साफ कह दिया वो आज मम्मी और डैड के साथ सोएगी। अचानक अरमान के जहन में ज़रीन का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई। इस बार उसने अपनी मर्ज़ी से अनिया को इनके पास छोड़ा और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो कमरे में आया, दरवाज़ा लॉक किया तो उसकी निगाह सबसे पहले बेड तक गई और सर तक कंबल में थी। वो यकीनन वो गहरी नींद सो रही थी। अरमान की मुस्कुराहट गायब हुई। वो जी भरकर बदमज़ा हुआ, कोट उतार कर सोफे पर रखा। वो सो चुकी थी। वो इसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, मगर अपने दिल का क्या करता जो अभी उसकी गुर्बत चाह रहा था। वो अब शूज़ उतार कर नंगे पाँव बेड तक आया। वो जानता था अनिया पास हो तो वो अरमान को अपने करीब नहीं आने देती, मगर आज अनिया नीचे थी। उसने ज़रीन के चेहरे से कंबल सरकाया तो वो सोई हुई किसी मासूम गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। अरमान का दिल जिससे बेकाबू होता मज़ीद तेज़ी से धड़कने लगा। उसने ज़रीन का गाल थपथपाया। ज़री, नरमी से उसे पुकारा, मगर जब वो वैसे ही पड़ी रही तो अरमान ने उसे झंझोड़ा। उसने कसमसाकर अरमान को की पुकार को इग्नोर करने की कोशिश की। आलम, सोने देना। उसकी नींद में डूबी आवाज़ उभरी, मगर अरमान तो आज उसकी नींद उड़ाने की नीयत कर चुका था। मैं कह रहा हूँ उठ जाओ ज़री, उसके कान के पास झुकते ऊंची आवाज़ में बोला तो ज़री ने जैसे एक झटके से आंखें खोले उसे देखा। उसकी आंखों में जैसे डर का तासुर था। अरमान के इस तरह कान के पास चीखने पर वो घबरा कर उठ बैठी। क्या हुआ? उसने जैसे हैरत से आसपास देखा। कुछ भी नहीं हुआ, अरमान ने मुस्कुरा कर कहते उसके माथे को लबों से छुआ। ज़रीन अब भी खाली खाली निगाहों से आसपास देख रही थी। वो इसकी नींद ख़राब करके अब पुरसुकून हो गया था। अनिया कहाँ है? अचानक ज़रीन को इसका ख्याल आया। वो मम्मी और डैड के साथ है, आज रात वहीं सोएगी। उसे अपने गिफ्ट्स खोलने की जल्दी थी। अब मैं इतनी जल्दी इतने सारे गिफ्ट्स ऊपर तो नहीं ला सकता था, इसलिए उसे वहीं छोड़ आया। वो आज रात मम्मी और डैड के पास ही सोएगी। ज़रीन उसकी बातों से अभी भी जैसे ख्वाब दिमाग ही थी। उसका ड्रेस चेंज करना था, वो इसकी फ्रॉक में सोएगी। ज़रीन ने फिक्रमंदी से कहा। वो भी अभी भी कच्ची नींद टूट जाने की वजह से अपने हवासों में नहीं थी। अरमान ने उसकी कमर के गिरद हिसार बनाते उसे अपने करीब किया, दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाया। उफ यार, कितनी परेशान होती हो तुम। मम्मी ने चेंज करवा दिया था उसे।
अब उसे छोड़ो और मुझ पर फोकस करो। ज़रीन जैसे उलझी हुई निगाहों से देख रही थी। उसका हाथ अपनी कमर पर रेंगता महसूस हुआ तो उसकी आंखें पूरी खुल गईं और अगले ही पल उसने अरमान का हाथ अपने गाल से दूर झटका। तो फिर आपने मेरी नींद क्यों ख़राब की? कोई एहसास भी है आपको कितना सर दर्द कर रहा था मेरा? इतनी अच्छी नींद आई थी। दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो अचानक गुस्से में थी। उसके कंधे पर मुक्का मार चुकी थी। अरमान के चेहरे पर अभी भी वही नरम मुस्कुराहट थी। अच्छा, तुम्हारी तो सिर्फ आज नींद ख़राब हुई है और मेरी मेरी पिछले 3 सालों से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। दुनिया के होते अपने करीब भी नहीं आने देती। आज वो नहीं है तो आज तुम्हें बख्श दूँ, ऐसा सोचना भी मत। वो मुस्कुराकर उसकी गर्दन में मुंह छुपाता सरगोशियाँ करता उसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था, मगर ज़रीन की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। उसने अरमान को मदहोश देखते उसे खुद से दूर किया। प्लीज़ अभी दूर हटें, मुझे वाकई बहुत नींद आ रही है, अभी सोने दें। जाएं यहाँ से आलम। वो इसे डांटते दोबारा से बेड पर लेटी और ब्लैंकेट सर तक ताने अपना मुंह छुपा लिया और अरमान हैरत से मुंह खोले उसे देखता रह गया। उसे ज़रीन की लम्हों में की गई चालाकी ने हैरान कर दिया। कैसे लम्हों में उससे दूर होती, मुंह तक कंबल तान गई थी। अरमान ने कंबल उसके चेहरे से दूर किया, मगर वो मज़ीद कंबल चेहरे पर रखती अपना चेहरा तकिए में घुसाने लगी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं ज़री, अगर तुम अगले 2 मिनटों तक ना उठी तो सोच लेना फिर। आज रात तो सुकून से सो जाओगी, मगर फिर मैं सुबह ही अनिया का कमरा अलग कर दूंगा। फिर हर रोज़ रात तो मेरी बाहों में ही गुजारनी पड़ेगी। अब सोच लो, आज की रात या आज के बाद हर रात। वो इसका चैन सुकून सब तबाह करता बेड से उठा और अब घूम कर दूसरी साइड आता बेड पर लेटा अपनी शर्ट का बटन खोलने लगा। ज़ुरी ने बेयकीनी और सदमे से ना सिर्फ कंबल चेहरे से दूर किया, खुद भी उठ बैठी और अब हैरानगी से उसे देख रही थी। उसकी नींद जैसे एक झटके से उठ चुकी थी। क्या आप मेरी बेटी को अलग कमरे में भेजेंगे? उसका सदमा नाकाबिले यकीन था। अरमान ने सुकून से इस बात में सर हिलाया। जब तुम्हें ऐसे काबू नहीं आती तो फिर वैसे ही सही। उसके होठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। ज़रीन उसकी जानिब झुकी और उसे गिरबान से पकड़ा। आप मेरी बच्ची को मेरे कमरे से निकालेंगे? वो जैसे अब भी बेहद बेयकीन थी। अरमान ने उसी मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और अगले ही पल ज़रीन ने पूरी कुव्वत से एक पंच अरमान के गाल पर दे मारा। उसका वार इतना ज़बरदस्त था कि अरमान के लबों से एक कराह निकल गई। वो इस अरसे में काफ़ी ट्रेन हो चुकी थी। अरमान की सिखाई फाइटिंग उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही थी। खबरदार ऐसा सोचा तो मैं आपको इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी। आए बड़े मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले। वो इसे सख्ती से तंबी करती इससे पहले वापस पीछे होती। अरमान ने तेज़ी से सीधे होते इसे बेड पर गिराया और अब उसके ऊपर साया फगन हुआ। उसके दोनों हाथ ज़रीन के इर्द गिर्द थे। दोनों के चेहरों के दरमियान चंद इंच का फासला था। ज़रीन की बोलती लम्हों में बंद हुई। मेरी जंगली बिल्ली काफ़ी बहादुर हो गई है और अब तो शायद नींद भी उड़ चुकी है तुम्हारी। फिर मैं अनिया को यहाँ से ना निकालने वाले फैसले पर गौर कर सकता हूँ। वो सरगोशी करते अचानक ही ज़रीन के चेहरे पर झुका और उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले वो उसकी सांसें रोक गया था। ज़रीन की पकड़ उसके गिरेबान पर सख्त हुई। उसके गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता जैसे उसके नशे में पूरा पागल हो चुका था। फिर कितनी ही देर बाद वो ऊपर हुआ। आध खुली शर्ट के सारे बटन खोलकर अपनी शर्ट जिस्म से जुदा की। ज़रीन ने उसे घूरा, मगर वो अब कहाँ पीछे हटने वाला था। आलम, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ज़रीन ने हल्की सी मज़ाहमत करने की कोशिश की। तो सो जाना मेरी जान, बस थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, फिर कसम से बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। जैसे मर्ज़ी अपनी नींद पूरी करना। अरमान ने साइड टेबल लैंप ऑफ कर दिया। आपने मेरी नींद ख़राब कर दी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी। जैसे आखिरी बार उंगली उठाए धमकी दी। अरमान की आंखें मुस्कुराई। कसम से बहुत ज़ोर से पंच मारा है तुमने। उसने अपने गाल पर हाथ रखे तकलीफ से आखिर ने शिकायत लगाई। ज़रीन की सारी नाराज़गी पल में गायब हुई। सॉरी आलम, वो मुझे गुस्सा आ गया था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरमान उससे बातों में लगा कर मज़ीद उसके करीब हुआ। वो उसका हाथ गाल से पीछे कर दी, उसका गाल देख रही थी। क्या बहुत ज़ोर से लगा? उसने अरमान का गाल देखते पूछा, जो हल्का सा सुर हो गया था। अरमान ने किसी मासूम बच्चे की तरह इस बात में सर हिलाया और ऐसे एक्टिंग करते वो वाकई बहुत अच्छा अदाकार लग रहा था। ज़रीन की आंखों में जैसे तकलीफ़ और अफसोस उतरा। उसने अपना चेहरा ज़रा सा तकिए से ऊपर किया और अरमान के गाल पर इसी जगह लब रखे। सॉरी, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरमान तो जैसे उसके नरम और नाजुक लम्स में खो ही गया। कितना सुकून था उसके पास होना। सिर्फ सॉरी से कुछ नहीं होगा, इतना दर्द हुआ मुझे, अब तो बदला चाहिए मुझे मेरी जान। शरारत से कहते वो ज़रीन को हैरान परेशान छोड़े उसके चेहरे पर झुकता, उसके हर नक्श पर लब रखते अपनी दीवानगी और जुनून से ये साबित कर गया था कि वो इसके बिना इतने साल कितना तड़पा और वो इससे कितनी मोहब्बत करता था। ज़रीन ने चंद पल मुज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर उसकी मुज़ाहमत बहुत हल्की सी थी। फिर उसने ख़ुद को इन
वहाँ में सौंप दिया। अब नींद तो ख़राब हो ही चुकी थी। वो ख़ुद भी उसके हिसार में सुकून महसूस करती थी। रात कतरा कतरा पिघलती रही। उसके बाद वो कहाँ थी? कोई होश न रही। बस वो साथ था, वो इसकी पनाहों में महफूज थी। उसे बस यही याद था। उसके कानों में कहीं दूर से फजर की अजान की आवाज़ पड़ रही थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोल कर उठ जाती। वो उठना चाहती थी, नमाज अदा करना चाहती थी, मगर उसे अपना सारा वजूद शदीद थकावट का शिकार लग रहा था। ऊपर से अरमान पूरा उसके ऊपर फैलकर सारा वजन उसके नाजुक वजूद पर डाले लेटा था। वो बामुश्किल आधा घंटा ही सो सकी थी। उसे सोने कहाँ दे रहा था। खुद तो इसे नींद आ नहीं रही थी, ऊपर से उसकी भी नींद का दुश्मन बना हुआ था। हर थोड़ी देर बाद उसके बालों में मुंह दिए उसके चेहरे पर अपने लब रखता और अपना हिसार उसके गिर्द तंग किए आंखें बंद कर जाता, जैसे वो तो गहरी नींद में हो। मगर ज़रीन जानती थी वो जाग रहा है। अब ज़रीन उसके इन ड्रामों से तंग आ चुकी थी। हज अरमान ने उसे जी भर कर तंग किया था। 3 सालों के सारे हिसाब सूद समेत पूरे कर चुका था और अब भी इनके होठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। ज़रीन की नींद से आंखें बंद हो रही थीं। वो चाहकर भी अब आंखें खोल न सकी। आलम, मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं और जानबूझकर तंग कर रहे हैं मुझे। प्लीज़ हटे मेरे ऊपर से, मुझे सुकून से सो लेने दें। वो बंद आँखों से बड़बड़ाई, मगर आवाज़ नींद की कमी के बाद शदीद झंझलाई हुई थी। चंद पल तक अरमान के वजूद में कोई हरकत ना हुई तो ज़रीन ने मुश्किल से अपनी नींद से बंद होती आंखें खोलीं। उसका सर अरमान के बाएं बाजू पर था, मगर वो खुद सारे का सारा दाएं जानिब से उसके ऊपर पड़ा हुआ था। आप बहुत झूठे हैं, कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे, बस अपनी फ़िक्र है, अपना सुकून प्यारा है। अभी जानबूझकर तंग कर रहे हैं मुझे। पता भी है कि मुझे नींद आई है, इतने घंटों से आपकी वजह से जाग रही हूँ, मगर आपको क्या लगे, कोई एहसास ही नहीं है मेरा, बस अपना ख्याल है। बहुत बुरे शौहर हैं आप। हटे पीछे, भाड़ में नहीं गई नींद, मुझे उठना है। वो अचानक रुहान सी होकर बोली तो अरमान की मुस्कुराहट सिमट गई। वो जो उसे तंग कर रहा था अब संजीदा। थोड़ा सा पीछे हट कर देखा तो वो वाकई रो रही थी। अरमान का दिल कट कर रह गया। सरी, वो तड़प ही तो गया था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। सॉरी मेरी जान, मैं तो बस ऐसे ही तंग कर रहा था, प्लीज़ ऐसे रो तो मत, अब नहीं करता तंग। वो जल्दी से उसके आंसू साफ करता सीधा होकर लेटा, फिर उसे अपने सीने से लगाए उसके माथे पर लब रख चुका था। सुरी ने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब साफ था वो उससे नाराज़ हो चुकी थी। अरमान को अब शर्मिंदगी हो रही थी। अच्छा सॉरी, अब बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, तुम सो जाओ, कोई तंग नहीं कर रहा, ओके, बस रेस्ट करो। उसे अपने सीने से लगाया, अब उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। जरीन अब भी कुछ न बोली, मगर उसकी बंद आंखों के इस बार एक मुस्कुराहट उभरी। जानती थी अरमान को कैसे काबू करना है। वो कैसे उसके रोने से तड़प गया था। बस चंद आंसू ही तो बहाए इसने और अरमान सीधा हो गया। अब वो पुरसुकून होती उसके शर्ट लेस सीने पर सर रख के गहरी नींद सो चुकी थी। अरमान ने दोबारा उसे तंग नहीं किया। वाकई सारी रात उसकी वजह से नहीं सोई थी और उसे अभी भी शरारतें सूझ रही थीं। अरमान ने उसके माथे पर लब रखते उस पर ब्लैंकेट ठीक से दिया। उसकी निगाह सरीन के गले के सुर्ख निशानात से होती नीचे गई तो वो खुलकर मुस्कुराया और इस वक्त अरमान की वाइट शर्ट में उसके सीने से चिपकी। अब पुरसुकून होकर गहरी नींद उतर चुकी थी। उसे इतने सुकून से सोता देखकर अरमान के सीने में ठंडक उतर गई। वो इसके बालों में उंगलियां चलाता खुद भी आंखें बंद कर गया। फिर कब उससे भी नींद आ गई उसे पता न चला। अब कमरे की पुरसुकून खामोशी में मोहब्बत की खुशबू और इन दोनों की मध्यम सी चलती सांसों का साज बाकी रह गया। बाहर इस्लामाबाद शहर पर नए दिन की रोशनी फूटती शुरू हो चुकी थी। नया दिन, नया पैगाम, नई खुशियाँ, नई मुसीबतें, नए गम, सब साथ लाने वाला था। जारी है।